Question number 11. A Limited is considering takeover of B Limited and C Limited. So दो कंपनीज को A Limited टेक ओवर कर रहा है, B Limited को एंड C Limited को. The financial data for three companies are as follows. Equity share capital of ₹10 बोला है, तो कैपिटल दिया है इसीलिए हमने उसको 10 से डिवाइड करके नंबर्स कैलकुलेट किया. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 45 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 18 करोड़ है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 9 करोड़ है. हमने इनको 10 से डिवाइड किया फेस वैल्यू से. देन अर्निंग्स दिया है, अर्निंग्स आर नथिंग बट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 90, 18 एंड 18 एंड मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर दिया है, that is 60, 37 and 46. What they have asked us to calculate is price earning ratio. So initially we have to calculate price earning ratio. अब price earning ratio का फॉर्मूला क्या है? Price earning ratio का फॉर्मूला है, PE ratio का फॉर्मूला क्या है? MPS upon EPS. MPS upon EPS. तो हम लोग अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास MPS तो है, मार्केट प्राइस पर शेयर है, लेकिन हमारे पास EPS नहीं है. Okay, so in order to get PE ratio, first we will be calculating EPS. Is that clear? So chalo, let us solve and calculate EPS first. EPS. EPS is equals to, what is the formula for EPS? EPS is equals to earnings upon number of equity. upon number of equity share. The formula as far as your EPS is concerned. चलो, तो accordingly सबसे पहला we will be solving it for three companies. A Limited. तो पहले A Limited का EPS कैलकुलेट करते हैं. और A Limited EPS is equals to how much is the earnings of A Limited? 90 crores. 90 upon and the number of shares for A Limited is 40. हम लोग ने नंबर्स कैलकुलेट किया था. EPS for A Limited is 2. EPS of B Limited is equals to. So I think बैकग्राउंड आवाज चल रहा है, प्लीज म्यूट कर लेना ना खुद को. कोई बच्चे बात कर रहे हो, आवाज आ रही है. For B Limited, it is equals to B Limited का earnings कितना है? The earnings for B Limited is 18. given to us as 18. So by B Limited it is 18. Yes. 18 by 18, na? That is yes. Equal to 1. And for C Limited, 18 that upon is 9. equals to 18 upon 9. 18 divided by 9. 18 upon 9. That is equals to 2. 2. बराबर है. So now we have the Yes. EPS for all the three companies, but our intention is not to calculate EPS but to calculate PE ratio. So therefore Yes. PE ratio PE ratio का formula is equals to MPS upon EPS. upon EPS. EPS. बराबर है. So PE ratio first we will be calculating for A. So A का PE ratio is equals to A का MPS. A का MPS कितना है? So A का MPS given to us as 60. 60. 60. 60 by A का EPS. A का EPS is 2. We have calculated. A का EPS ऊपर calculate किया 2. So for A it is equals to 30. 30. Okay. Fine. For B
Now for B it is equals to B का MPS is 37. Yes. Upon So for C it is equals to 37. yes. C it is equals to C का MPS is 46. Upon 46. 46. So 46 by 2 23. 23. So now we have the PE ratio for all the three firms. ठीक है? So this is the first part, PE ratio for all the three firms. So PE ratio हमने ढूंढ लिया. Then the next question that they have asked is earning per share of A Limited after acquisition of B Limited and C Limited separately. Now they have asked us to acquire the both the companies separately. देखो separately पूछा है. EPS of A Limited after acquiring B Limited and C Limited separately. तो पहला हम क्या करते हैं, ऐसा assume करते हैं कि A Limited is acquiring Limited B Limited is acquiring पहला B Limited assume करता है, ठीक है? So A Limited is acquiring B Limited, ये पहला assumption है. This is our first assumption. A Limited is acquiring B Limited, ठीक है? And if A Limited is acquiring B Limited, तो सबसे पहला तो acquire करने के लिए हमें acquiring ratio चाहिए. Yes. तो हमने पूछा है will you recommend Yes. the merger of either both of the companies? Just justify your answer. तो both companies का merger करना है या एक ही company के साथ merger करना है, that you have to justify. So let us evaluate each of the proposal separately. पहला A Limited का B Limited के साथ को acquire कर रहा है देखेंगे. तो acquire करने के लिए सबसे पहले तो exchange ratio चाहिए. Yes. Acquire तो जब हम करेंगे जब हमको exchange ratio मिलेगा. तो first we have to calculate the exchange ratio. So exchange ratio is equals to So exchange ratio किसके ऊपर बेस्ड करेंगे? So they have not given us anything in the question कि exchange ratio कैसा करना है. So what we will be assuming is whenever the question is silent as far as exchange ratio is concerned, the exchange ratio will be based on MPS. किसके ऊपर बेस करेंगे हम लोग? MPS. MPS. So exchange ratio we will be taking the exchange ratio on MPS whenever the question is silent. ठीक है? So MPS पे. So MPS of किसका लेते हैं पहला? Target company B Limited है. So MPS of B Limited upon MPS of acquiring. MPS of acquiring company is A Limited. A Limited. Exactly. This is the फॉर्मूला. तो उसके लिए हम लोग एक्सचेंज रेशियो पहला MPS लेते हैं B Limited का MPS देखा तो 37 है. B Limited का MPS is 37. हाँ. अपॉन A Limited का MPS मार्केट प्राइस है 60. 0.6. तो 0.6167 ऐसा कुछ और फिगर आ रहा है. Yes. बराबर है. So this is your exchange Yes, ratio if you are acquiring A Limited is acquiring B Limited. लेकिन exchange ratio होने के बाद the next thing that we calculate exchange ratio के बाद क्या calculate करते हैं हम लोग? Number of Shares to be given. number of shares to be issued by A Limited shareholders of This is the next calculation. सब लोग अगर म्यूट है तो किसके बैकग्राउंड में आवाज चल रहा है? कौन म्यूट नहीं है?
So number of shares to be issued by A Limited to B Limited. ठीक है? So let us calculate number of shares issued by A Limited to B Limited. So that is equals to how many shares of B Limited were there? B Limited का पहले से shares कितना है? B Limited का shares 18 है, 18 crores. बराबर है? So we will be writing it as 18. 18 crores को फिलहाल मैं 18 लिख रहा हूँ into 0.6 exchange ratio. So exchange ratio is how much? Exchange ratio is 0.6167. लेकिन वो continued रहता है तो हम लोग पता है क्या लिखते हैं? हम लोग डायरेक्टली वो फ्रैक्शन लिखेंगे 37/60. 60. ठीक है? तो is equals to कितना आया? This many crores. So that will be equal to 11.1 crores. 11.1 crore. So 11.1 crores are the number of shares that are been issued. Clear? Okay. So now we have the number of shares that are issued. वो अपने को मिल गया. Number of shares issued मिल गया. और एक बार number of shares issued मिल गया, then we are in a position to calculate EPS. So that will be called as post merger EPS. What is the formula for EPS? Earnings. Earning after tax upon number of Total earnings. दोनों कंपनी का earnings करना है तो total earnings करता हूँ. Upon number of equity shares. Total number of equity shares. हाँ. ठीक है. So according to this formula, 108, 90%. टोटल अर्निंग्स कितना है? तो टोटल अर्निंग्स के लिए दोनों का अर्निंग्स को एड अप करना पड़ेगा. तो एक का अर्निंग 90 है और दूसरे का अर्निंग कितना है? 90 प्लस 18. दिस इज द टोटल अर्निंग. 108. बराबर है. और दूसरे उसका अर्निंग, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 45 है. प्लस हमने बी लिमिटेड को कितना इश्यू किया एक्सचेंज में? 11.1. आई होप दिस इज क्लियर. Yes. 56.1. कितना आ रहा है? हमें ईपीएस चाहिए डायरेक्टली. हाउ मच ईपीएस कोई बताएगा? 1.925. 1.925. 1.925. 93 लू. 925. चलेगा. 925 93 ना उन्नति. चलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. Yes. अंडरस्टूड. ये हो गया आपका. किसको एक्वायर किया आपने? इफ यू आर एक्वायरिंग ए लिमिटेड बी लिमिटेड देन दिस इज द सिनेरियो. Yes. बराबर है. सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, ए लिमिटेड एक्वायरिंग बी लिमिटेड. अब ए लिमिटेड किसको एक्वायर करने वाला है बोलो? C Limited. Now A Limited is going to acquire C Limited. Yes. तो A Limited अगर C Limited को एक्वायर करेगा तो क्या? Once again the same steps. सबसे पहले एक्सचेंज रेशियो. लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो अगेन द एक्सचेंज रेशियो विल बी बेस्ड ऑन एमपीएस. बराबर है. एमपीएस ऑफ क्या लेंगे? एमपीएस ऑफ यहाँ पे C Limited अपॉन एमपीएस ऑफ A Limited. So how much is the MPS of C Limited? C Limited का MPS था 46. बराबर है. और A Limited का MPS तो 60 है. Yes. So how much the 0.76. 0.77. 0.67 आ रहा है समथिंग. ओके. देन उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है. अब नंबर ऑफ शेयर्स ए लिमिटेड किसको ऑफर कर रहा है? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सी लिमिटेड. ओके. वापस वही एक्सचेंज रेशियो. सो एक्सचेंज रेशियो के लिए पहला सी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? सी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स था 9. 90 कैपिटल है. ओके. हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. नंबर ऑफ शेयर्स 9 है क्योंकि 90 कैपिटल है. सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 9. ओके.
and the exchange ratio again points में आ रहा है. So what I'm going to do is once again I'm going to write the fraction 46 by 60. Yes. 6.9. Yes. 6.9. 6.9. 6.9. 6.9 growth shares Yes. आपको issue करने हैं. ठीक है. Then once again you have to calculate the post merger EPS. तो post merger EPS का formula यही है, total earnings upon total number of equity shares. Yes. ठीक है. अब total earnings किसका है? तो A लिमिटेड का 90 है, लेकिन यहाँ पे C के साथ मर्ज हो रहा है तो C का earnings 18 है. C का earnings चलो वापस 18 इंसर्ट करता हूँ अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स A लिमिटेड का 45 है. Yes. लेकिन C लिमिटेड को हम लोग कितना इशू कर रहे हैं ये केस में 6.9. ओके, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी कितना बताओ मुझे. सो 90 प्लस 18 2.08. डिवाइड बाय 51.9 कितना आ रहा है बोलो. 2.08. 2.08. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. हाँ. This is when you are merging both the companies separately. ठीक है. So दोनों companies को आपने separately merge किया and this is the scenario that you have arised to. Now, if you have merged both the companies separately, तो फिर उसके बाद एक पॉइंट अराइज होता है. उन्होंने अपने को पूछा था विल यू रिकमेंड द मर्जर ऑफ आइदर स्लैश बोथ ऑफ द कंपनीज, जस्टिफाई योर आंसर. सो हमें आंसर जस्टिफाई करना है कि ए लिमिटेड शुड गो फॉर मर्जर विद बी लिमिटेड और विद मर्जर विद सी लिमिटेड और इट शुड मर्ज विद बोथ द फर्म्स, ऐसा उन्होंने पूछा है हमसे. सो लेट अस फाइंड आउट वेदर ए लिमिटेड शुड बी मर्जिंग विद बोथ द फर्म सेपरेटली और इंडिविजुअली. ओके, तो वो हम चेक करते हैं. ठीक है, तो वो कैसा चेक करेंगे. तो देखो यहाँ पे हम लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मच इज द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड गेनिंग बाय दिस मर्जर. तो वापस गेन टू शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा in order to analyze your answer. Gain to holders. So gain to shareholders ढूंढना पड़ेगा in order to analyze the answer कि A लिमिटेड का मर्जिंग दोनों के साथ होना चाहिए कि एक ही के साथ होना चाहिए. चलो, सो गेन टू शेयर होल्डर्स का स्टेप्स बताओ मुझे. गेन टू शेयर होल्डर्स के लिए क्या चाहिए? एक गेन टू शेयर होल्डर्स के लिए मुझे पहला पोस्ट मर्जर एमपीएस चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए गेन के बाद गेन कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो पहला गेन टू शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करता है. गेन टू शेयर होल्डर्स कौन से केस में? इफ ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग बी लिमिटेड. तो ये केस में गेन कैलकुलेट करता है. इफ ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग बी लिमिटेड तो गेन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट इंस्टेंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग गेन. ठीक है, चलो, सो गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर नहीं, पोस्ट पहला अपने को एमपीएस चाहिए ना. शेयर होल्डर का वैल्यू तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. बराबर है. सो पोस्ट मर्जर एमपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा. बराबर है. पोस्ट मर्जर एमपीएस, और एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस का फॉर्मूला है पी रेशियो पी इंटू ईपीएस या ईपीएस इंटू पी, कुछ भी बोलो आप. बराबर है. ठीक है, सो पोस्ट मर्जर एमपीएस. अब पोस्ट मर्जर एमपीएस किसका होगा? पोस्ट मर्जर के बाद एमपीएस कौन हो? किसका एमपीएस ढूंढ रहे हैं हम? ए का कि बी का? के बाद किसका एमपीएस ढूंढेंगे? ए का कि बी का? ए का, क्योंकि बी है ही नहीं, बी तो मर्ज हो चुका है. ओके, सो ए का एमपीएस ढूंढने के लिए पी रेशियो सबसे पहला हम लोग लेते हैं. ए का पी रेशियो कितना है जरा बताओ. इसलिए ए का देखना पड़ेगा. ए का पी रेशियो है, और हमने कैलकुलेट किया था ना ए का पी रेशियो. सो पी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था ए का 30. देखो किया है ना. सो पी रेशियो फॉर ए इज 30 इनटू ईपीएस. नाउ हाउ मच इज द ईपीएस ऑफ ए? तो ये वाला ईपीएस नहीं लेना है. कौन सा वाला ईपीएस लेना है? ए एक्वायरिंग बी का. तो ए एक्वायरिंग बी का ईपीएस कितना है? 1.93. So A acquiring B is 1.93. I hope this is clear. Yes. And the post merger EPS, post merger MPS of A Limited
विल बी 57.9। तो अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया तो उसका मर्जर के बाद मार्केट प्राइस होगा 57.9 का। क्लियर? ओके, तो फिर शेयर होल्डर्स का वैल्यू कितना होगा वो हम टेबल बनाते हैं। तो वो हम टेबल कैसे बनाते हैं, हम कह लेते हैं पोस्ट मर्जर पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू, पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू। एंड हाउ टू कैलकुलेट पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या कैलकुलेशन हम करते हैं, पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू इज पोस्ट मर्जर के बाद उनका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स उनका 45 रहने वाला है मर्जर के बाद, इनटू हाउ मच इज द मार्केट प्राइस 57.9। ओके, so that's going to be equals to 2000 605 605.5 crores because the answer is in crores। okay, and फिर प्री मर्जर करेंगे, शेयर होल्डर्स वैल्यू मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू इज इक्वल्स टू वापस 45 था इनटू, लेकिन अपने को प्री मर्जर का मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा। मर्जर से पहला मार्केट प्राइस 60 था। बराबर है, तो दैट मींस इट इज रिजल्टिंग इन अ लॉस। लॉस टू शेयर होल्डर्स हो रहा है, लॉस हो रहा है। So dear student, loss is nothing but the difference of these two. Okay, so loss 2700 minus 206.5. So 94.5 crores का लॉस हो रहा है। This is the situation. This is the situation. If you are merging किसको, A लिमिटेड इज एक्वायरिंग बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड को एक्वायर किया तो ए लिमिटेड का शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है। बी लिमिटेड का शेयर होल्डर्स को लॉस हो रहा है कि फायदा हो रहा है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने बी लिमिटेड के लिए पूछा ही नहीं, उन्होंने खाली ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। क्लियर? ओके, अभी यही चीज अपने को वापस करना है, लेकिन किसके साथ, अगर हम किसके साथ एक्वायर कर रहे हैं, सी के साथ एक्वायर कर रहे हैं। सो वी हैव टू डू इट अगेन, वंस अगेन। ठीक है, तो इफ ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग, किसको एक्वायर कर रहे हैं, सी लिमिटेड। सो इफ ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग सी लिमिटेड, ठीक है, वंस अगेन द सेम स्टेप्स वी हैव टू रिपीट। पोस्ट मर्जर एमपीएस ढूंढना पड़ेगा ए लिमिटेड का, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, पी इनटू ईपीएस। अब पी ए लिमिटेड का 30 है, लेकिन ईपीएस ये केस में चेंज हो रहा है। सी लिमिटेड के साथ मर्ज होने के बाद ईपीएस कितना होता है, 0.767 हो रहा है, कितना 2.08 है ना ईपीएस। यस 2.08 है। 2.08 2.4 का मार्केट, ठीक है। सो देयरफॉर पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, पोस्ट मर्जर शेयर होल्डर वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स तो 45 है, लेकिन पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस अभी चेंज होके कितना हो गया, 62.4। सो इसीलिए शेयर होल्डर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, शेयर होल्डर्स का वैल्यू हो जाएगा 208 करोड़, और प्री मर्जर तो उतना ही रहने वाला है 2700। ओके, लॉस होगा कि गेन होगा, जरा बताओ। यहाँ पे गेन हो रहा है, हाँ, कितने का गेन हो रहा है, 108 का गेन हो रहा है यहाँ पे। I hope this is clear. हाँ. Okay. So now
if your A limited is acquiring B limited, then A limited का shareholders को loss होएगा 94.5 crores का, and if A limited is acquiring C limited, then A limited का shareholders को gain होगा 108 करोड़ का. तो फिर आप suggest करो क्या करना चाहिए A limited को? दोनों को acquire करना चाहिए कि किसी एक को acquire करना चाहिए? और एक को तो किसको? किसी एक को. किसको? C को एक्वायर करना चाहिए ना, बिकॉज इफ यू आर एक्वायरिंग बी लिमिटेड तो लॉस हो रहा है शेयर होल्डर को, तो ए लिमिटेड क्यों लॉस करेगा अपने शेयर होल्डर्स का? अंडरस्टूड? सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखते हैं, देयरफॉर ए लिमिटेड शुड एक्वायर C limited. It results gain of value to its shareholders. I hope this is clear. Understood? Yes. So this is about question number 11. Let's move on to question number 12 then. So question number 12. Sir, sorry to disturb you, but हाँ, बोलो. तिचा कनेक्ट नाही होत आहे. कोणाचं कनेक्ट नाही होत आहे? दीपाचं. ती लोक कनेक्ट होऊन परत बाहेर गेलेले वाटतं. हा. बघ आता कनेक्ट झाले का? हा झाले असतील, असेल तर मेसेज येईल तिचा. ओके. सो प्रॉब्लेम नंबर 12. रोहित, तुझ्या बॅकग्राऊंड मध्ये मुलांचा आवाज येतोय का रे? नाही सर, इथे तर पूर्ण शांत आहे. So problem number 12. XYZ Limited is considering merger with ABC Limited. Okay. XYZ Limited shares are currently traded at 25. So XYZ का shares are currently traded. So this is nothing but the market price. So market price दे दिया है. Okay. So this is nothing but MPS. MPS दिया है. MPS. Okay. It has 2 lakh shares outstanding. So number of shares भी दे दिया है 2 lakhs. ये किसका दिया है? ये सब XYZ Limited का दिया है. Okay. XYZ Limited is considering merger with ABC. So XYZ Limited का market price दिया है, number of shares दिया है, and its profit after tax. Profit after tax भी दिया है. Profit after tax is given to us as 4 lakhs. Clear? Okay. Yeah. फिर ABC Limited has 1 lakh shares outstanding. ABC का number of shares 1 lakh outstanding है. Its current market price is 12.50 and its profit after tax is 1 lakh. ABC का भी दिया हुआ है. ठीक है. The merger will be affected by means of stock swap. Stock swap का मतलब आपको बताया था exchange है और हमेशा exchange ratio exchange ही होता है. ठीक है. The AB Limited, AB मतलब ABC रहेगा. ABC Limited has agreed to plan under which XYZ Limited will offer the current market value of to ABC shares. ये यानी exchange ratio किस पे करने बोला है उन्होंने? Market price. Market price पे current ये exchange करने बोला है. तो उन्होंने पूछा what is the पहला question है what is the pre-merger earning per share and PE ratio of both the companies. So before merger how much what's their EPS and what's their PE ratio that we have to calculate separately for XYZ and ABC. ठीक है. फिर उसके बाद if ABC Limited's PE ratio is 8, what is its current market price? What is the exchange ratio? And what will be XYZ Limited? What will be XYZ Limited so that pre and post merger EPS will be same? ये अपने को देखना है. And third point will be what must be the exchange ratio of XYZ Limited so that pre and post merger EPS would be to be same. ठीक है. So these are the 3 points that we have to solve. तो चलो 1 by 1 सॉल्व करते हैं. सबसे पहले एक काम करते हैं, सॉल्व करने के पहला हम लोग एक टेबल बनाते हैं.
सो टेबल में क्या लिखूंगा, टेबल में पहला पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद पहला कौन सा, XYZ लिमिटेड, एंड देन वी हैव XYZ के बाद कौन सा कंपनी है, ABC लिमिटेड। मैं टेबल क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये सब में उन्होंने अपने को थियरी फॉर्म में दिया है। ये हाँ थियरी फॉर्म में दिया है, तो वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू अ टेबल फॉर्मेट, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स XYZ लिमिटेड एंड ABC लिमिटेड। नाउ व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन, लेट अस राइट डाउन, ठीक है। सो सबसे पहला मैं लिखता हूं, चलो मार्केट प्राइस लिख देता हूं। मार्केट प्राइस दिया MPS ऑफ बोथ दी कंपनीज। MPS Yes. of XYZ limited is given to us as 25 and Yes. MPS of ABC is given to us as 12.50, 5. ठीक है। MPS के बाद उन्होंने Number of equity shares. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दिया है, 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स, so number of shares of ABC limited is given to us as 2 lakhs, XYZ is 2 lakh. XYZ 2 लाख। XYZ is 2 lakhs, sorry, XYZ and is ABC 2 lakh. limited का it's 1 lakh, 1 लाख। 1 lakh. Yes. 1 लाख। and then they have also given us PAT, Yes. Yes, PAT 1 लाख। profit after tax, Earning. या अर्निंग्स भी लिख सकते हैं उसे, हाँ, 4 लाख। so earnings is given to us for XYZ lakh. limited as 4 lakhs and ABC Yeah. limited that is been 1 given to lakh. us as 1 lakh. 1 लाख। Yes. हाँ। This is the requisite information, बराबर है। अब क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग सम, ठीक है। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 11, 12. सो इलस्ट्रेशन नंबर 12 के लिए ये इंफॉर्मेशन है। So this is the information for illustration number 12. Let us solve this further, ठीक है। So सबसे पहला what they have asked, उन्होंने पूछा है प्री मर्जर अर्निंग्स पर शेयर, EPS पूछा है, प्री मर्जर EPS। So चलो let us calculate प्री मर्जर EPS कैलकुलेट करने के लिए प्री मर्जर EPS का फॉर्मूला यूज करता है, यानी EPS प्री मर्जर या पोस्ट मर्जर EPS का फॉर्मूला तो एक ही है, क्या है, अर्निंग्स MPS of targeting company upon क्या कहता, sorry earning upon number of equity shares. Number of equity शेयर्स, equity shares. ओके। हाँ. प्री मर्जर बोला है तो प्री मर्जर दोनों कंपनीज रहेगा। सो फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर XYZ। XYZ का अर्निंग्स कितना है, अपन ने इधर ही अभी ऊपर लिखा, XYZ का अर्निंग्स 4 lakhs है। 4 लाख। Yeah. XYZ का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2 lakhs। तो फॉर XYZ Rupees 2. 2, Yes. XYZ के लिए ₹2 है। बराबर। देन XYZ के बाद यही चीज हम लोग ABC के लिए कैलकुलेट करते हैं। ABC का 1 lakh Upon 1 lakh. Upon 1 lakh. lakh Upon 1 lakh. Rupees 1. ₹1। ओके चलो ये हो गया EPS कैलकुलेट करके, लेकिन EPS के साथ साथ उन्होंने क्या कैलकुलेट करने बोला था आपको, प्री मर्जर PE ratio. रेशियो कैलकुलेट भी करने बोला था। तो कैलकुलेट EPS एंड PE रेशियो, PE रेशियो भी कैलकुलेट करता है।
पी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, पी रेशियो का फॉर्मूला इज एमपीएस MPS upon MPS EPS. upon EPS. अपॉन ईपीएस हाँ. और XYZ, क्योंकि ये मर्जर से पहला करना है तो मर्जर से पहले तो दोनों भी कंपनीज है। XYZ का एमपीएस कितना, XYZ का एमपीएस ऊपर ही हमने लिखा है 25 है, 5. स्लैश ईपीएस अभी हमने कैलकुलेट किया 2, ओके 12.5. सो 12.5 एंड एबीसी इज इक्वल टू, एबीसी का 12.5 है स्लैश 1 1.5 जितना. दैट इज इक्वल टू 12.5 वंस अगेन, ओके। तो दोनों कंपनी Yes. पी रेशियो 12.5 का है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, सो वी हैव डन विद आवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, इफ एबीसी लिमिटेड पी रेशियो इज 8, ओके। सो एबीसी लिमिटेड का पी रेशियो 8 का है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने एबीसी लिमिटेड का पी रेशियो कितना एज्यूम किया है, कितना हमको मिला, 12.5 का मिला है, बराबर है कि नहीं, ओके। बट नाउ दे आर सेइंग इफ एबीसी इज लिमिटेड पी रेशियो इज 8, व्हाट इज इट्स करंट मार्केट प्राइस। सो डियर स्टूडेंट, इफ एबीसी लिमिटेड पी रेशियो इज 8, वो हमको कंसीडर करने बोला है। asked us to consider, तो चलो एबीसी लिमिटेड का पीई रेशियो 8 है तो उसका मार्केट प्राइस ढूंढने बोला है। सो देयरफॉर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, विद द हेल्प ऑफ पीई रेशियो, पी PS into PE ratio. इनटू PE ratio. EPS. ईपीएस, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब पी रेशियो हमको कितना बोला है, पी रेशियो इज इक्वल्स टू 8, उन्होंने क्वेश्चन में खुद ने बोला पी रेशियो 8 कंसीडर करो, इनटू कितना है, एबीसी लिमिटेड का 1 है, हाँ. 1. द पी रेशियो इज गोइंग टू, सॉरी एमपीएस इज गोइंग टू बी रुपीस 8। 8. Yes. आई होप दिस इज क्लियर, ओके। ये उनका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, अब यही सिचुएशन में उन्होंने एक्सचेंज रेशियो पूछा है, तो एक्सचेंज रेशियो के लिए कैलकुलेशन करते हैं। एक्सचेंज रेशियो बोलो, एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, Total. कौन सा बेसिस पे एक्सचेंज करें, MPS. एमपीएस, वही सेंटेंस कंटिन्यू, upon MPS of acquiring. एमपीएस ऑफ MPS of targeting टारगेट कंपनी, कौन सा इसमें, ABC. which is the target of company, acquiring ABC, company. target company is ABC, MPS of acquiring company. acquiring company, और acquiring company कौन सा, XYZ, XYZ. ठीक है। हाँ. सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ले एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी, एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी एबीसी का एमपीएस हमने यहाँ पे ढूंढा है 8, ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा हमें 8, हाँ. ये क्योंकि ऊपर भी देखो एमपीएस दिया है, देखो एबीसी का एमपीएस कितना दिया था, एबीसी का एमपीएस 12.50 का दिया था, लेकिन 12.50 हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमें ये सिचुएशन में ढूंढने बोला है। तो ये सिचुएशन में हमने एमपीएस रिवाइज किया था, 8 लेना है, 8 बाय एमपीएस ऑफ 25. एमपीएस ऑफ XYZ इज 25, वो चेंज नहीं हुआ है, सो दैट इज 25। सो दिस इज इक्वल टू, एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल टू 0.32, बराबर है, ठीक है। ये उन्होंने पूछा था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट उन्होंने पूछा व्हाट विल बी XYZ पोस्ट मर्जर ईपीएस, उसके बाद हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस ढूंढना है। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसा ढूंढेंगे, तो एक्सचेंज रेशियो के बाद ईपीएस ढूंढने से पहला हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड To ABC. To ABC. allotted to ABC। तो एबीसी लिमिटेड को कितना शेयर्स अलॉट करेंगे वो देखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू कैसा होगा। सो उनका पहले का शेयर्स कितना था एबीसी का,
एबीसी का पहले का नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख. Yes. 1 lakh into the exchange ratio. How much is the exchange ratio? 0.32. So that's going to be equals to 32,000 आएगा. हाँ. तो 32,000 शेयर्स अलॉट होगा ये एक्सचेंज में. और एक बार शेयर्स पता चल गया, then we are in a position to calculate post merger EPS. Yes. Yes. प्री मर्जर हो या पोस्ट मर्जर हो, ईपीएस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, अर्निंग्स. लेकिन यहाँ पे खाली पोस्ट मर्जर होने के कारण अर्निंग्स को मैं टोटल अर्निंग्स लिखता हूँ, क्योंकि दोनों कंपनीज का अर्निंग ऐड होने वाला है. टोटल अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स को मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखता हूँ. Total number of shares. I hope this is clear. So according to this formula, how much is the total earnings? तो total earnings मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा. That is earnings of A Limited 4 lakh है और earnings of B Limited 1 lakh है. Okay. That is going to be 4 lakhs plus 1 lakh. थांब देते ओए कौन हे थांब त्याका सांग देते म्हणून शोधू दे मला. So this is 4 lakh plus 1 lakh. And total number of shares कितना है? Total number of shares of XYZ Limited का total number of shares 2 lakh था. Plus Limited 32,000. का कितना? 32,000 हमने इशू किया है. So ये पूरा कैलकुलेट करके get me the answer for this. 2.16. That is rupees Yes. 2.16. 16. I hope this is clear. ये आया आपका पोस्ट Yes, मर्जर sir. EPS. What did all of you? हाँ. नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछा है? थर्ड पार्ट पूछा है उन्होंने, व्हाट मस्ट बी द एक्सचेंज रेशियो फॉर XYZ लिमिटेड सो दैट प्री एंड पोस्ट मर्जर EPS बी सेम. ओके, सो दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो फॉर पोस्ट एंड प्री मर्जर EPS to be same. बराबर है, ये एक्सचेंज रेशियो पूछा है उन्होंने. बराबर. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जब हमने एक्सचेंज किया था, अभी हमने एक्सचेंज कौन से बेसिस पे किया था? मार्केट प्राइस के बेसिस पे एक्सचेंज किया था. ओके, और मार्केट प्राइस के बेसिस पे एक्सचेंज किया था तो पोस्ट मर्जर EPS कितना है? 2.6116. ओके, जबकि प्री मर्जर EPS कितना था? प्री मर्जर EPS XYZ का खाली 2 था. ओके, सो व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस तो EPS देखो चेंज हो गया था. XYZ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो XYZ का मर्जर से पहला EPS 2 था और मर्जर के बाद EPS 2.16 हुआ. क्लियर? लेकिन अभी हमको क्या पूछ रहे हैं? ऐसा वाला एक्सचेंज फॉर पोस्ट एंड प्री मर्जर EPS टू बी सेम. एक्सचेंज रेशियो फॉर पोस्ट एंड मर्जर EPS टू बी सेम. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा वाला एक्सचेंज रेशियो मैंने आपको पहले भी बताया था. अगर दोनों का ये सेम रखना है देन द एक्सचेंज शुड बी बेस्ड ऑन EPS. Then the exchange should be based on EPS. So dear students, if you want to solve this exchange ratio जिसका पोस्ट मर्जर और प्री मर्जर दोनों सेम रखने के लिए the exchange should be based on EPS. तो अगर EPS के बेसिस में हम एक्सचेंज करेंगे तो प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर EPS दोनों भी सेम रहेगा. Okay, so that means the exchange ratio that they have asked this part is equals to किसके बेसिस पे एक्सचेंज करना पड़ेगा ऐसा सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए? EPS के बेसिस पे. तो EPS ऑफ XYZ अपॉन EPS ऑफ ABC आएगा ऊपर टारगेट कंपनी. दिस इज इक्वल्स टू
चलो बताओ ईपीएस ऑफ XYZ कितना था प्री मर्जर? दोनों का ईपीएस कितना था? देखो दोनों का ईपीएस हमने कैलकुलेट किया था, एक का 2 है और एक का 1 है। 2 और 1 है। हाँ। सो 2/1, so that is equals to 2. 2. So exchange ratio is 2. यानी ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए the exchange ratio is equals to 2. So if they want to keep the pre-merger and post-merger EPS to be same, then this can only be facilitated by exchanging it through your based on EPS and exchange ratio 2 रहेगा तो ये हो सकता है। क्लियर? अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूव। सर डाउट है, बोलो। ऊपर टारगेट कंपनी आएगा ना सर, एबीसी आएगा ना? एबीसी आएगा ना पहले XYZ लिखा है। सॉरी, ये एबीसी आएगा, ये XYZ आएगा, और अगर ये एबीसी और ये XYZ आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। दिस इज नॉट 2, दिस इज 1/2, बराबर है। एंड 1/2 मतलब ये अचीव करने के लिए व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेशियो? द एक्सचेंज रेशियो विल बी इक्वल्स टू 0.5। 0.5। सो ये उल्टा फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, इसीलिए वो 2 आया था। सो एक्सचेंज रेशियो शुड बी 0.5। अब इसको प्रूव करते हैं। लेट अस प्रूव दिस थिंग। ठीक है, प्रूव करते हैं कि बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर दोनों सेम है क्या। सो बिफोर मर्जर तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितना ईपीएस बिफोर मर्जर ऑफ एक्स लिमिटेड 2 है, XYZ का 2 है। जरा आफ्टर मर्जर कैलकुलेट करते हैं। सो पोस्ट मर्जर, सो पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू कितना आएगा? किसको अलॉट कर रहे हैं हम लोग? एबीसी लिमिटेड को। लिमिटेड को। तो एबीसी लिमिटेड का शेयर्स 1 लाख था, इनटू अभी एक्सचेंज रेशियो, तभी एक्सचेंज रेशियो 0.32 का लिया था ना मार्केट प्राइस पे जब बेच था। अब एक्सचेंज रेशियो कितना कंसीडर किया हमने? 0.5 का किया। 0.5 का किया है तो आंसर विल बी कितना शेयर्स देंगे? 50,000। यस 50,000 शेयर्स इशूड होगा। देन if this is the scenario, then वापस वही फॉर्मूला पोस्ट मर्जर अर्निंग्स। तो फॉर्मूला सेम, टोटल अर्निंग्स अपॉन दिस, टोटल अर्निंग्स भी सेम रहेगा, खाली नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जहां पे 2 लाख प्लस 32 था, यहाँ पे 2 लाख प्लस 50,000 आ जाएगा। 2 जरा चेक करो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आया ना आंसर? हाँ। तो देखो प्री मर्जर ईपीएस कितना था? 2 था। पोस्ट मर्जर ईपीएस भी कितना रहा? 2 ही रहा। ओके, यानी ये प्रूव हो गया कि द एक्सचेंज रेशियो फॉर पोस्ट एंड प्री मर्जर ईपीएस टू बी सेम, देन द एक्सचेंज शुड बी बेस्ड ऑन क्या रहना चाहिए हमेशा? ईपीएस। तो आज के बाद ये दिमाग में डाल देना, whenever they ask us to keep the pre-merger and post-merger EPS same, the exchange should be based on EPS. I hope this is clear. Yes, sir. Understood? ठीक है? Then let's move on to illustration number 13. Just a second. So illustration number 13. क्या बोला है 13 में? राखी लिमिटेड is considering a takeover of Sakshi Limited. The particulars of two companies are given below. Okay. अब यहाँ पे मेरे ख्याल से नाम राखी और साक्षी लिखा है और यहाँ पे एबीसी और सीडी दिया है। तो ये एबीसी सीडी नहीं होगा, ये राखी और साक्षी, बराबर है। So this is not ABC. ये रहेगा R और ये रहेगा साक्षी S. ओके,
earnings after tax 40 lakhs and 20 lakhs, number of equity shares 20 lakhs and 20 lakhs, EPS is 2 and 1 and PE ratio is given to us as 20 and 10. What is the market value of each company before merger? चलो मार्केट वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे. What is the market value of each company before merger? ठीक है. So how to calculate market value? Market value will be equals to क्या करेंगे हम लोग? EPS into PE ratio. Market price will be equals to EPS into PE ratio. Okay. So market price will be equals to EPS into PE ratio. 40. MPS is equals to EPS into PE ratio. PE into EPS या EPS into PE, whatever you want to write. पहला हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? एक्स लिमिट. कौन सा कंपनी है पहला? RIL. R. तो RIL का PE रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? RIL का PE रेशियो 20 दिया है इनटू EPS RIL का 2 दिया है. सो दैट इज इक्वल्स टू 40. SI. के बाद कौन है? SIL. Equals to 10 2 1 1. 1. So that is going to be 10. 10. ठीक है. ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है? सेकंड पॉइंट में उन्होंने पूछा assuming that the management of RIL estimates that the shareholder of SIL will accept an offer of 1 share of RIL for 4 shares of SIL. Okay, so assuming that management of RIL estimates that the shareholder of SIL will accept. तो बोलो exchange ratio यहाँ पे दे दिया है. कितना exchange ratio बोला है? 1 share of RIL for 4 shares of SIL. I hope that is clear. तो उसका मतलब यहाँ पे RIL is acquiring SIL. बराबर है. And they have given the exchange ratio 1 share for 4 shares. ठीक है. If there is no synergy effect, what is the market value of post merger RIL? What is the new price for shares? Are the shareholders of RIL better or worse off than they were before the merger? ये सारे सवाल उन्होंने किए अपने को. ठीक है. तो ये सब हमने पहले भी कैलकुलेट किया. Let us quickly calculate all these things. RIL is acquired by SIL. तो फिर वही अपना जो रेशो उन्होंने दिया है, तो हम लोग याद है ना, वो हेल्ड इशू का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ. यस बराबर है. जब रेशियो उन्होंने दिया है तो हम लोग हेल्ड और इशूड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. चलो बोलो क्या बोला उन्होंने? सिचुएशन क्या क्रिएट करके दिया? हेल्ड कितना? 4 4 बोला है 4. और इशूड कितना? तो इशूड में उन्होंने बोला है 4 हेल्ड रहेगा तो 1 इशू करेंगे. तो अकॉर्डिंगली किसको हमको इशू करना है? SIL को हम एक्वायर कर रहे हैं. SIL को इशू कर रहे हैं तो SIL का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कुछ 20 lakhs का है. 5 lakh. 20 lakhs है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मुझे बताओ 5 lakh. Share. कितना इशू हो रहा है उनको? 5 लाख आ रहा है. हाँ. नंबर ऑफ शेयर्स issued to SIL is equals to 5 lakh. I hope this is clear. ठीक है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, वी हैव टू कैलकुलेट पोस्ट मर्जर ईपीएस. पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला तो हमने ऊपर ही लिखा है. सो लेट मी कॉपी डाउन दैट फॉर्मूला फॉर यू. पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला टोटल अर्निंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे टोटल अर्निंग ये क्वेश्चन में क्या आएगा? टोटल अर्निंग इज 40 lakhs plus 20. प्लस 20 lakhs 60 lakh. नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 20 lakhs का है. लेकिन यहाँ पे हम शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं? 5 lakhs इशू कर रहे हैं.
हाँ 2.4 कितना आ रहा है आंसर? 2.4. So post merger EPS will be 2.4. I hope this is clear. Okay. पोस्ट मर्जर ईपीएस खाली नहीं कैलकुलेट करने बोला था, उन्होंने मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस भी बोला है. सो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी विल बी कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस. एमपीएस कैलकुलेट करते हैं, पोस्ट मर्जर एमपीएस. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमपीएस? EPS into P ratio. P into EPS. EPS into PE ratio या P into EPS, whatever you want to write. Yes. चलो ये पोस्ट मर्जर है, तो पोस्ट मर्जर रहेगा तो ये किसका रहेगा बताओ खाली? EPS and PE. किसका PE देखेंगे हम लोग? So ratio we are going to look for whose PE ratio? 48. RIL. PE ratio of किसका? RIL. 20. RIL company. RIL का PE ratio कितना है? 20 into RIL का EPS अभी अपन ने कैलकुलेट किया 2.4. कितना है? 48. Yes. Yes. तो मार्केट प्राइस आ रहा है 48 का, ठीक है. लेकिन उन्होंने मार्केट प्राइस के साथ साथ अपने को क्या पूछा है? 48. लेकिन उन्होंने अपने को खाली मार्केट प्राइस पे नहीं पूछा. आर द शेयर होल्डर्स ऑफ आरआईएल बेटर और वर्स ऑफ देन दे वर बिफोर द मर्जर. तो वही जो आरआईएल के लिए अपन को और आरआईएल लिमिटेड वी हैव टू डू द कैलकुलेशन वेदर द शेयर होल्डर्स आर गेनिंग और लूजिंग. बराबर है. For RIL, so RIL Limited post merger shareholders value will be equals to RIL का post merger shareholders value के लिए how much is the shares number of equity shares RIL का? So RIL का number of equity shares are 20 lakhs. 2 lakh. RIL का पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस अभी अपन ने कैलकुलेट किया 48 का है. तो फॉर RIL ये कितना आ रहा है? RIL के लिए आ रहा है 9 करोड़ 60 lakh. 60 lakhs. और प्री मर्जर शेयर होल्डर तो उतना ही है 20 lakhs इनटू प्री मर्जर. उसका मार्केट प्राइस कितना था? क्वेश्चन में दिया है उन्होंने. प्री RIL का मार्केट प्राइस 40 था ना? RIL का चाहिए. हाँ 40. दिस इज गोइंग टू बी 8 करोड़. तो फिर यहाँ पे गेन ही हो रहा है उनको 1 crore 60 lakh. कितने का गेन हो रहा है? 1 करोड़ 60 lakhs का गेन हो रहा है. दिस इज क्लियर. यही उन्होंने करने बोला था. क्लियर. And the last sum for the day, illustration number 14. 14. चलो ये लास्ट सम है. A firm A is studying the possible acquisition of firm B by way of merger. The following data are available. Firm A B after tax, number of equity shares and market price per share. तो ये तीनों भी इंफॉर्मेशन दिया है. If the merger goes through by exchange of equity shares and the exchange ratio is set according to the current market price, तो exchange ratio based on क्या चाहिए? Market price चाहिए. ठीक है.
what is the new earning per share of firm A. So वापस based on market price and new earning we have to calculate. ठीक है. Firm B wants to be sure that the earning per share is not diminished by the merger. What exchange ratio is relevant to achieve this objective? तो ये दो क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व करने बोला है. So one at a time करता है. पहला क्वेश्चन सॉल्व करता है. पहला बोल रहा है एक्सचेंज करना है. एक्सचेंज बाय वे ऑफ मर्जर बाय वे ऑफ मार्केट प्राइस करना है. ठीक है. चलो लेट अस डू दिस. काय सो एक्सचेंज बाय वे पहले एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करता हूं. सो एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल्स टू एमपीएस के ऊपर बेस करना है. सो एमपीएस ऑफ टारगेटिंग कंपनी. टारगेट कंपनी यहाँ पे कौन सा है? सो ए लिमिटेड इज फाइन टू एक्वायर बी लिमिटेड. टू टारगेट कंपनी इज बी. एमपीएस ऑफ लिमिटेड ए बराबर है लिमिटेड. हाँ 0.8. तो एमपीएस ऑफ बी कितना है? 60. 60 by 75. 0.8. 0.8. 0.8 का एक्सचेंज रेशियो. जैसे हम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर ऑफ एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय ए लिमिटेड बी लिमिटेड. दैट विल बी इक्वल्स टू बी लिमिटेड का शेयर्स कितना था पहले का? बी लिमिटेड का शेयर्स 50,000 का इनटू 0.8. 40,000 शेयर्स आ रहा है. 1000 shares. 40,000. इसे 40,000 शेयर्स है. पोस्ट मर्जर ईपीएस वापस कैलकुलेट करते हैं. 13. पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला यही है. फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया है. सो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल अर्निंग्स करते हैं. टोटल अर्निंग्स कितना है इसका? 10 लाख. 30 lakh टोटल. और दूसरे का 3 लाख. एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है? इसका 2 लाख था. इसका 40. और उनको हमने कितना अलॉट किया? 40,000. हाँ बोलिए. सो हाउ मच इज द आंसर बताओ जरा. 5.42. 5.42. 42. 5.42. हाँ. ओके. सो दिस इज व्हाट पोस्ट मर्जर ईपीएस इज. ये पहला पार्ट था. क्वेश्चन इतना ही. सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? इफ बी लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट अर्निंग पर शेयर इज नॉट डिमिनिश्ड बाय the merger, B limited if earning per share is not diminished by the merger, what exchange ratio is relevant to achieve the objective? मुझे बताओ. अगर EPS diminish नहीं होना चाहिए, so what should be the exchange ratio? if EPS of B limited should not diminish, ये कंडीशन है. बराबर है. सो ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड शुड नॉट डिमिनिश. दिस इज द कंडीशन गिवन. बोलो ये कंडीशन के लिए व्हाट शुड बी द रेशियो? दोनों अपन ने पहले भी सॉल्व किया. देन एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन, बोलो क्या? पीएस. ईपीएस डिमिनिश नहीं होना चाहिए तो एक्सचेंज ईपीएस डिमिनिश नहीं हो. डिमिनिश का मतलब क्या? ईपीएस सेम रहना चाहिए. Yes. और अभी अपन ने सॉल्व किया था इन ऑर्डर टू कीप ईपीएस सेम. देखो ईपीएस सेम रखने के लिए देन द एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन क्या? EPS. ईपीएस होना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी वो लोग अगर बोलेंगे कि डिमिनिश नहीं होना है, सो याद रखना द एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस.
So if EPS of B Limited should not diminish, then the exchange ratio should be based on EPS. So let us calculate the exchange ratio. So exchange ratio in this case will be EPS of B Limited upon EPS of A Limited. बराबर है? So how much is the EPS of B Limited? तो वो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है ना, EPS of B Limited दिया ही नहीं है ना अपने को, नहीं दिया है। नहीं दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेशियो लेने से पहला हमको ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशियो तो हम बाद में ले सकते हैं जब हमारा ईपीएस कैलकुलेट होगा। सो लेट अस टेक ईपीएस फर्स्ट। सो ईपीएस कैलकुलेट करता हूं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, so that is equals to, नहीं ये दोनों के लिए करना पड़ेगा, पहला ए के लिए करता हूं। इज इक्वल्स टू ए का अर्निंग्स कितना था? ए का अर्निंग्स 10 लाख है, ऑन ए का नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख था, इक्वल टू 5 तो ए के लिए कितना आ रहा है? 5। और बी इट इज इक्वल्स टू, बी का अर्निंग्स था 3 लाख, 50,000। बी के लिए कितना आ रहा है ये? 6। ओके, तो अभी ईपीएस मिल गया अपने को। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट दिस एक्सचेंज रेशियो। अपने पास ईपीएस ही नहीं था और हम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे थे। अभी हमने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट। सो दिस इज 6/5 5 1.2 So the exchange ratio is 1.2, यानी अगर शेयर होल्डर्स का वैल्यू डिमिनिश नहीं होना चाहिए, then the exchange ratio should be 1.2. क्लियर? ओके, प्रूव, इसको प्रूव करा। कभी भी ऐसा पूछेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा कि डिमिनिश नहीं हो रहा है। Let us prove this. तो प्रूव करने के लिए ये एक्सचेंज रेशियो पे मैं पोस्ट मर्जर ईपीएस पहला कैलकुलेट करता हूं। सो लेट मी कैलकुलेट पोस्ट मर्जर ईपीएस। और पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए पहला नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वाला एक्सचेंज रेशियो पे। सो आई हैव टू डू द होल कैलकुलेशन वंस अगेन। सो फॉर प्रूविंग दिस स्टफ, what I am going to do, number of shares allotted by A Limited to B Limited under this situation. तो 50,000 into यहाँ पे कितना आएगा? 1.2 आएगा। So 50,000 into 1.2 is going to be 60,000 shares यहाँ पे allot होगा ये situation में। Okay, total earnings is going to be divided by 60,000 होगा। तो बताओ ये केस में EPS कितना आएगा? अगर ये एक्सचेंज रेशियो लेंगे तो ईपीएस इज गोइंग टू बी 13 लाख डिवाइड बाय 2,60,000। 5 आएगा। हाँ ठीक है, अब जरा प्रूव करने के लिए चेक करो। ए लिमिटेड का, सॉरी हम ये प्रूव किसके लिए कर रहे हैं? कौन सा कंपनी के लिए ईपीएस डिमिनिश नहीं होना चाहिए बोला था उन्होंने? ये सब में बी लिमिटेड के लिए प्रूव करना है। ओके, सो बी लिमिटेड के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो बी लिमिटेड का पहले वाला ईपीएस देखो कितना था। बी लिमिटेड का पहले वाला ईपीएस कितना था? 6 है, बराबर है। और बी लिमिटेड का मर्जर के बाद का ईपीएस कितना है? 5 ये तो क्या सेम रहा ईपीएस? नहीं ना, नहीं। तो ये यहाँ पे हम गलती करेंगे। आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं तो सेम नहीं रहा आप बोलोगे, लेकिन एक्चुअली में हम जब बी लिमिटेड के साथ कंपेयर करता है तो बी लिमिटेड के साथ कंपेयर करने के लिए अपने को इक्विवेलेंट ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ता है, जो मैंने आपको एक बार बोला था। क्योंकि बी लिमिटेड को हम लोग ने शेयर्स चेंज करके दिया है। सो बी लिमिटेड का खाली ईपीएस मत चेक करना, बी लिमिटेड के लिए क्या देखना पड़ता है? इक्विवेलेंट ईपीएस कंपेयर करने के लिए। सो हम कंपेयर कैसा करेंगे? तो प्री मर्जर ईपीएस
of B Limited, pre-merger EPS of B Limited is equals to 6. बराबर है? B Limited का pre-merger EPS 6 का है and post-merger EPS. So post-merger EPS जब B Limited का कैलकुलेट करोगे, so post-merger EPS of B Limited, यहाँ पे याद रखना पोस्ट मर्जर नहीं लिखना रहता है बी लिमिटेड के लिए, इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर लिखना होता है. क्या लिखना होता है? Equivalent. इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर EPS लिखना होता है. एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर EPS? सो दैट इज इक्वल्स टू द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर EPS इज इक्वल्स टू, क्या बोला था इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? EPS, मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, EPS into exchange ratio. हाँ, पोस्ट मर्जर EPS into एक्सचेंज रेशियो. ये है इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. बराबर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मुझे बताओ आपका पोस्ट मर्जर EPS कितना आया था? आपको EPS पोस्ट मर्जर दिख रहा है 6 का, सॉरी 5 का दिख रहा है ना? 5 का 5 इंटू एक्सचेंज रेशियो आपको कितना है? 1.2 का है ये क्वेश्चन में, 1.2 एक्सचेंज रेशियो yes है ना? 6 बराबर है? हाँ, तो देखो बराबर है कि नहीं? डिमिनिश हुआ क्या वैल्यू? नहीं हुआ. अब ये 5 से अगर आप 5 से चेक करोगे तो आप रॉन्ग जाओगे. 5 से कभी नहीं चेक करने का. हाँ, ए लिमिटेड के लिए हम कर सकते थे 5 से. देखो ए लिमिटेड के लिए चेक करो. ए लिमिटेड का पहले कितना था? 5. और ए लिमिटेड का बाद में भी कितना हुआ? 5. ओके, ए लिमिटेड के साथ हम लोग 5 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बी लिमिटेड का कंपेयर करने के टाइम हमको प्री मर्जर को इक्विवेलेंट पोस्ट मर्जर के साथ चेक करना पड़ता है, नॉट पोस्ट मर्जर के साथ. अंडरस्टूड विद दिस स्टफ? प्रूव हो गया, उसका मतलब वैल्यू डिमिनिश नहीं हुआ है. क्लियर? हाँ. ओके. yes